After a sharp hike in petrol prices, the news gets no better. The Reserve Bank of India today hiked the repo rate by 0.25 percentage points to 8.25%. Repo rate is the rate at which banks borrow money from RBI, which means when the repo rate increases, borrowing from RBI becomes more expensive. So all loans, personal and corporate, are likely to become costlier, and home loan EMIs will increase once banks hike their base rate, the rate to which most retail loans are pegged. Headline inflation continues to be a matter of concern at above 9% over the last 12 months. With significant supply and demand side factors contributing to it. There are also signs of growth being affected by monetary tightening in the recent data on the real economy. Today's step is consistent with the RBI's monetary stance for the first half of 2011-12 and the overall concern on growth sustainability in the medium term. I am hopeful that measures taken would get us back to a more comfortable inflation situation. Many things that need to be done to revive investment. Clearly, a moderate interest rate environment is a very important part of it. But these are short-term moves. So if inflation is brought under control and the rate hike is reversed in a few months' time, the really important thing on investment are the longer-term constraints on implementation, which we really need to look at. The fuel price hike is hurting investment sentiment, quite frankly. It's giving the signal that when the government said that we were going to link energy prices to global prices, that we are standing by that signal. So I regard that as a vindication and increase in credibility of a very basic part of the reform strategy. Frankly, internationally and globally, people believe that countries that can absorb energy prices that exist globally are much more likely to grow rapidly than countries that suppress it. The empowered group of ministers meeting to decide on increasing the price of LPG scheduled today was cancelled following pressure by Congress allies and public outrage. The next date of the meeting, which has been cancelled for the third time under political pressure, has not been finalized yet. Key Congress allies DMK and Trinamool Congress have expressed their reservation about increasing the LPG price. An expert panel has proposed that every household should get only 4 to 6 LPG cylinders at a subsidized price of rupees 395 or so, and pay the market price of about rupees 710 for every additional cylinder. And it's not just political parties and even UPA allies like the Trinamool Congress protesting against the steep petrol price hike. The man on the street is livid and showing it. सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है, इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। मानते कि अब ऐसा लगता है कि सरकार जिस हिसाब से तो डॉलर की कीमत घट रही है, उस हिसाब से तो पेट्रोल नीचे होना चाहिए था। ये तो ऊपर ही चढ़ी जा रहा है। इससे तो देश में तो मेरे को नहीं लग रहा है कि दोबारा से कभी ये शासन आना चाहिए। अनाज़ार ठीक ही कहता है। एकदम तेजी से जो रेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें दिक्कत बहुत हो रही है कि एकदम बजट हिल जाता है। एज आई एम अ सर्विस क्लास पर्सन, तो बहुत दिक्कत होती है। जिनके पास गाड़ियां हैं, लोग अब सोच रहे हैं कि गाड़ियां खड़ी कर दो और पैदल जाओ या कोई और साधन देखो।
Meanwhile, there is nothing much to cheer for the petroleum dealers in Punjab, especially the ones which are located at borders with Haryana and Chandigarh. This as Punjab has the highest tax on petrol among the northern states. The consumers prefer to buy cheaper fuel from Chandigarh and bordering parts of Haryana. At many places, the difference is as much as 8 rupees. रोपड़, मोहाली, फतेहगढ़ साहब, जीरकपुर, पटियाला, संगरूर और ये बठिंडा, ये ऐसे जिले हैं जहां मेरे डीलर बिल्कुल बैंकरप्सी पे हैं, इनकी सेल नहीं हो रही और ये सरकार हमको इस तरफ तवज्जो नहीं देती, जिसके लिए ये हमारी डीलर नेटवर्क जो है वो काफ़ी परेशान है। हमने काफ़ी मौका भी दिया था लेकिन काम हुआ नहीं। मैं आज भी यही कहता हूँ, रेट कम कर दो, रेवेन्यू से ज़्यादा ले लो। मैंने इनको ऑफर कर रखी है रेवेन्यू कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन कि मेरा वैट किसी भी लेवल पे, चाहे चंडीगढ़, चाहे हरियाणा, चाहे हिमाचल, किसी के लेवल पे बराबर कर दो और 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमसे ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि मेरी जो सेल्स शिफ्ट हो रही है एटलीस्ट वो प्लग हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी, रिकॉल पैक हो जाएगी और उसके ऊपर आपको रेवेन्यू मिलेगा। Joining us now in the studios are Mr. Randhir Verma, who is a consumer activist and banker, Mr. Purushottam Garewal, who is the director of Orbit Apartments Construction Private Limited, and Mr. B.K. Srivastava, who is the Director General of the Mahatma Gandhi Institute of Public Administration. Welcome to our studios, all of you. वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। चौथी हाइक है पेट्रोल प्राइस में और उसके बाद रेपो रेट में भी 0.25% की हाइक है। इससे जो आम जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कितना धक्का लगने वाला है? इसमें सबसे बड़ा जो है, एक तो रेपो रेट बढ़ा तो बैंक के लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। जो लोन लेता है वो बड़े बड़े जैसे बिजनेसमैन लोन लेते हैं, तो अगर वो लोन के रेट बढ़ेंगे नेचुरली वो कॉस्ट भी बढ़ाएंगे। अगर वो एक प्लास्टिक की प्रोडक्ट बनाता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली अगर एक तरफ से पेट्रोल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से रेपो रेट बढ़ रहा है, ये दोनों के बीच में जो कंज्यूमर है वो क्रश होगा हमेशा, क्योंकि ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं जा सकती। या तो सिर्फ पेट्रोल बढ़े या रेपो रेट अकेला बढ़े। दोनों के बढ़ने से जो गैप है वो इतना नैरो हो जाता है कि हर आदमी की पॉकेट में से पैसा जाएगा उसमें, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी हर एक चीज की। दूसरी तरफ जो पेट्रोल है, पेट्रोल से आम आदमी, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ी, या तो जो गवर्नमेंट है वो गाड़ियों के ऊपर रोक लगा दे, कोई गाड़ी प्रोड्यूस नहीं होगी आगे, ठीक है। तो पेट्रोल जो है, मतलब हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट लोगों की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहती है, शायद लोगों को साइकिल पे लाना चाहती है। लेकिन हम लोग आज से 50 साल पीछे, जहां से हम शुरू हुए थे 60 साल पीछे 1947 में, वहां पे नहीं जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लाइक एनी अदर यूरोपियन कंट्री जहां पे बहुत अच्छा है। तो हमारा कहने का मतलब भी हमारी जो प्लानिंग है इंडिया में वो बहुत पुअर है। जापान अगर 45 में जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, वो आज कहां पे स्टैंड करता है, और हमें आजादी 47 में मिली। चाइना को देखिए, वो कंट्री ग्रो की है, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? मैं इस पे मिस्टर वासु का लेना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं जो अभी मिस्टर वर्मा ने कहा, ये कहां तक सही है इस हाइक को लेकर? दोनों स्टेप्स फेयरली रीजनेबल हैं, क्योंकि देखिए ये रेपो रेट जो हाइक किया गया है इसका पर्पस ये कि डिमांड साइड को मॉडरेट करना, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए रेपो रेट में राइज एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, और जो इन्फ्लेशन हो रहे हैं और इतनी तेज जो टेरिफिक हमारा ग्रोथ भी हो रहा है, तो थोड़ा सा वो मॉडरेट करना भी जरूरी है। अमेरिका वगैरह में बहुत तेज ग्रोथ हुई और बाद में चीजें बर्स्ट हो गई, बबल्स। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। इससे पहले गवर्नमेंट ने, आज से 2 साल पहले ख्याल होगा, जब 2009 में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट खूब बढ़ाया इसलिए कि उसको किक स्टार्ट करना था, क्योंकि वर्ल्ड में जो रिसेशन हुए थे वो चाहते थे कि इंडिया उससे मुतासिर ना हो, और वाकई नहीं मुतासिर हुआ, और उन्होंने काफी क्रेडिट को, लिक्विडिटी को बढ़ावा दिया और ग्रोथ हमारी सस्टेन रही। तो मॉडरेशन भी एक हद में जरूरी है। जहां तक पेट्रोल प्राइस के बढ़ने का सवाल है, अब पेट्रोल प्राइस तो देखिए, फ्यूल की प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं, और ये पेट्रोल वगैरह सब लिमिटेड हैं। एक वक्त और भी आएगा कि भी और भी बढ़ेगा और अंत में फिर बैलगाड़ी पे उतरने की नौबत भी आ सकती है। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बढ़ाना और फ्यूल कंजर्वेशन करना और ये सारी चीजें करनी और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ जाना, जैसे नेशन ने अपना जो है हाइड्रोकार्बन से हट करके और अल्टरनेटिव पावर प्रोजेक्ट जो है वो ढूंढने का वादा किया ही हुआ है, न्यूक्लियर
प्रोडक्शन भी इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेसेस तो चलने हैं, पेट्रोलियम से सब गाड़ी नहीं चला सकते, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आना पड़ेगा। जहां तक ये इंक्रीज का सवाल है, इंक्रीज को हमने पेट्रोलियम वगैरह और केरोसिन के प्राइसेस को पहले से काफी रोक करके सब्सिडाइज करके रखा हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट कब तक सब्सिडाइज करेगी? तो ऐसी हालत में जो पेट्रोलियम का बढ़ेगा तो रेलगाड़ी भी उससे अफेक्टेड होगी, ट्रक भी अफेक्टेड होगा, आम आदमी भी अफेक्टेड होगा। I'll come to you, Mr. Garewal. You're a realtor and home loans are also becoming costlier now. I believe that the realty sector is already sluggish. How do you think it will impact housing? Actually, per se, as per everybody's indicating that the government has taken such a decision to check the inflation. Since March 2010, there have been 12 hikes in repo rate. Okay. So if there are so many hikes and still in this one full year, more than 1 year, they have not been able to tame the inflation, then the solution also lies in other measures rather than only resorting to this measure of increasing the repo rate. Like government can, for instance, check its own expenditure. It can curtail, use austerity measures on its own expenditure, which government is not focusing on. So they are taking the easy way out, which is increasing the repo rate. I guess these kind of suggestions they would not like to hear. But then it is hurting the common buyer of houses. As a realtor, I can tell you our home loan portfolio has shrunk to the tune of 40% because people are feeling the pinch. The EMIs have gone up, and as per se this our real estate sector is heavily taxed. We are subjected to stamp duty, service tax, income tax, and sales tax, all kind of taxes, which account to almost 40% of the cost of the house. So if the government is intent on providing affordable housing, this is not the way we have to go about. देखिए, अफोर्डिंग हाउसिंग प्रोवाइड करते के चलते ही अमेरिका में जो क्राइसिस आई है 2008 में, इसी पे आई कि पॉपुलर गवर्नमेंट चाहती है कि खूब चीप हाउसेस बन जाएं, और एक हद में इतना एक्सेस बन गया कि सब प्राइम मॉर्गेजेस का लॉस और जिसने सारी वर्ल्ड इकोनॉमी को धक्का दे डाला, सिर्फ इसी वजह से हुआ। आज भी अगर हम जो वर्ल्ड रिसेशन से अफेक्टेड नहीं हुए, वो रेड्डी साहब के टाइम पे जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने हाउस लोन्स के ऊपर जो रिस्क वेटेज था वो बढ़ा दिया था, उसके वजह से कंट्रोल कर लिया। वरना जितने हाउसेज और जितने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स आज के दिन पिछले 8-10 साल में बनी है, उतना 200 साल में नहीं बना है। तो एक हद जरूर आएगा कि सडन इस पे जो है गलत हो जाएगी, तो इसलिए मॉडरेशन से चलना बेहतर है।